بلیٹن کے آغاز میں شامل کرتے ہیں عام خبر۔ حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ریلیف کے دعوے ہوا ہو گئے۔ ملتان میں آپ کو سرکاری آٹا خریدنا ہے تو کرنا پڑے گا انتظار۔ تحصیلدار موڑ پر سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہری آپس میں گتم گتا۔ سرکاری آٹے کی ٹرالی کے گرد شہریوں کا ہجوم۔ آٹا خریدنے کا کوئی نظام نہیں، کوئی قطار نہیں، جو زیادہ دھکم کرے گا اسی کو آٹا ملے گا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو ریلیف کے دعوے ہوا ہو گئے۔ ملتان میں آپ کو سرکاری آٹا خریدنا ہے تو کرنا پڑے گا انتظار۔ تحصیلدار موڑ پر سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہری آپس میں گتھم گتھا۔ سرکاری آٹے کی ٹرالی کے گرد شہریوں کا ہجوم۔ آٹا خریدنے کا کوئی کرے گا اسی کو آٹا ملے گا۔ ملتان شہر میں تحصیلدار موڑ پر سرکاری آٹا لینے کے لیے شہری گتھم گتھا ہو گئے۔ سرکاری آٹے کی ٹرالی کے گرد شہریوں کا ہجوم لگ گیا۔ آٹے کی تقسیم کا کوئی نظام نظر نہیں آیا۔ شہریوں نے سرکاری آٹے کا سٹال لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہاں کوئی روٹین نہیں ہے آٹا دینے کی، نہ کوئی ادھر طریقہ کار ہے۔ بس ٹرالی آتی ہے، لوگ سارے ٹرالی کو چپک جاتے ہیں، ہر کوئی آگے ہاتھ کرتا ہے۔ نہ جو انتظامیہ ہے وہ صحیح طریقے پہ سٹال بنائے، ایک ایک لائن بنا کے ایک ایک بندے کو ایک ایک تھیلا دیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عوام صبح 8 بجے آتی ہے جبکہ آٹے کی گاڑی 10 بجے تک آتی ہے۔ گھنٹوں یہاں کھڑے رہنے کے بعد اکثر خالی ہاتھ واپس جانا پڑتا ہے۔ اپنے جاننے والے دکانداروں کو ایک آئی ڈی کارڈ پر 3 سے 4 آٹے کے تھیلے دیتے ہیں۔ گاڑی بھی توڑ کے آتے ہیں اور لہٰذا یہ ٹرالی بھی ٹائم پہ نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رش کتنا ہے۔ یہ منہ ملازم بندوں کو تو 3 4 گٹو دیتے ہیں اور دکاندار بھی آتے ہیں، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ مہربانی کوئی یہاں پہ نظام 3 4 گٹو جی 3 4 گٹو جیسے دکاندار تھے جاننے والے ان کو دے دیتے ہیں۔ ٹرالی کے ساتھ ساتھ چل کے آیا ہوں، بڑی مشکل سے ایک تھیلا ملا ہے، جبکہ بینر لگا ہوا ہے مل کے گیٹ پہ، لیکن وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہاں پہ مطلب آٹا نہیں ملتا، وہاں پہ نظام نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ دکاندار یہاں سے سستا آٹا خرید کر اپنی دکانوں پر مہنگا آٹا بیچتے ہیں۔ انتظامیہ کے لوگ گاڑیوں پر کھڑے ہو کر آٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہجوم لگ جاتا ہے۔ اس نظام کو ٹھیک کیا جائے، آٹے کا سٹال لگایا جائے اور سب کو برابر آٹا دیا جائے۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ہمراہ محمد ابراہیم خان، روہی، ملتان۔ خانیوال اور گردنواں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹے کے حصول کے لیے سیل پوائنٹ پر مرد و خواتین کی قطاریں، گھنٹوں انتظار کے بعد بھی شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ آپ کو بتا رہے ہیں خانیوال اور گردنواں میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹے کے حصول کے لیے سیل پوائنٹس پر مرد خواتین کی قطاریں، گھنٹوں انتظار کے بعد بھی شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ سستے آٹے کا حصول عام آدمی کے لیے امتحان بن گیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے آٹا پوائنٹس پر صبح سے ہی مرد و خواتین کی لمبی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھنٹوں انتظار کے بعد باری آتی ہے۔ امید تو نہیں ہے، پھر بھی کھڑے ہیں۔ صبح 8 بجے کے آئے میں لائن میں لگے میں صبح سے ادھر کھڑے 8 بجے، اب مزدوری کیا کریں گے؟ اب دیکھ لیا آپ کے سامنے، یہ پوری برگل 1 بجے گا ادھر۔ خانیوال شہر کی 8 لاکھ آبادی کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے صرف 4 سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں جن پر 800 تھیلا آٹا فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ شہری کہتے ہیں محنت مزدوری کے لیے جائیں یا سستے آٹے کے حصول کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکے رہیں۔ 8 بجے کھڑے ہیں، اب دیکھیں انتظار کریں کب آٹا ملے گا۔ سارا وقت نکل جاتا ہے، صبح 9 بجے کے ہم آئے ہوئے یہاں پر، اب 2 بجے سے کم 2 تو بج جائیں گے یہاں سے جاتے جاتے۔ آٹا سیل پوائنٹس پر دھکم پیل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، جبکہ خواتین گھروں کا کام کاج چھوڑ کر قطاروں میں کھڑی رہتی ہیں۔ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑی ان خواتین کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کی فراہمی کے نظام کو آسان کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی، خانیوال۔ مہنگائی کے ستائے عوام سبسڈی کے تمنات سے محروم۔ جامپور شہر میں سستے آٹے کا حصول مشکل تر ہو گیا۔ ماڈل بازار میں سرکاری آٹے کا کوٹا صرف 35 تھیلے تک محدود۔ شہری دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ضرورت سے کم کوٹے پر شہری شکوہ کناں ہیں۔ ضرورت سے کم کوٹے پر شہری شکوہ کناں ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی کے ستائے عوام سبسڈی کے ثمرات سے محروم ہو چکے۔ جامپور شہر میں سستے آٹے کا حصول مشکل تر ہو گیا۔ ماڈل بازار میں سرکاری آٹے کا کوٹا صرف 35 تھیلے تک محدود ہے۔ شہری دھکے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جامپور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ماڈل بازار میں 35 تھیلے آٹے کا کوٹا مقرر کر کے مرد اور خواتین کا مذاق بنا دیا گیا۔ شہریوں نے شکوہ کرتے ہوئے بتایا کہ 2 روز سے خوار ہو رہے ہیں مگر آٹا نہیں مل رہا۔ ماڈل بازار میں آٹے کا کوٹا بڑھایا جائے۔ ماڈل بازار کے اندر کم از کم 100 سے 150 تھیلا ہونا چاہیے۔ جو اکثر جو بیچارے دیہات سے آتے ہیں لوگ تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے بہت کھا لے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے آتے ہیں محتاج
सैलाब के मारे कि उनको आटा भी नहीं मिलता और वो यहाँ से ऐसे जाते हैं जैसे अभी अभी यानी कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया हो। सेल पॉइंट्स के डीलर ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि उनको 35 थैलों का कोटा मुहैया किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता साल यहां आटे के 200 थैलों का कोटा मुकर्रर था। काफी दिनों से हमने रिक्वेस्ट की है फूड इंस्पेक्टर साहब से और डीएफसी साहब के हवाले से भी सर, ये है कि हमें 35 बैग देते हैं। यहाँ पिछले साल जो यहाँ पे आटा था तकरीबन 150-200 बैग यहाँ पर डे के हवाले से होता था। अब ये है कि आटे का जो टाइम है 12 बजे यहाँ पहुँचता है तकरीबन, हमसे 12 बजे से पहले तकरीबन हमारे पास 100 बंदे आते हैं, 100 से भी ज्यादा 150, तो 35 चले होते हैं। रोजाना लोग हमारे साथ मुंहमारी भी करके जाते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर सेल पॉइंट्स पर आटा मिलना मुश्किल हो गया। ताहम शहरी हलकों ने हुकाम से सेल पॉइंट्स पर कोटा बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। बहावलपुर में गंदम बहरान सर उठाने लगा। गंदम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक पहुंच गया है। बहावलपुर में गंदम बहरान सर उठाने लगा। गंदम के दाम बढ़ने से ओपन मार्केट में आटा मजीद 30 रुपए महंगा। 15 किलो आटे का थैला 1630 रुपए का हो गया। 10 रोज में थैला 150 रुपए तक महंगा हो गया। बहावलपुर में गंदम का बहरान एक मरतबा फिर सर उठाने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। एक हफ्ता के दौरान गंदम की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा, कीमत 3700 रुपए तक पहुंच गई, जिसके बाद आटे की कीमत को भी पर लग गए। मुसलसल आटा ऊपर जा रही है तो गरीब की दस्तरस से बाहर हो जाएगा। अब ये कैसे खरीदेगा? इसके बारे में हमारे हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना चाहिए। कोई रेट लिस्ट, कोई इशू, कोई तरतीब कुछ भी नहीं है। अगर होता तो यहाँ आपको नजर आता। आप देख लें, हुकूमत जब से आई है ये सारा निजाम ही ऊपर जा रहा है। 10 रोज में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए महंगा हो चुका है। पिछला रोज आटा 30 रुपए मजीद महंगा हुआ, जिसके बाद 15 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 1630 रुपए तक पहुंच गई, जबकि होलसेल में 1660 रुपए तक फरोख्त होने लगा। किराना मर्चेंट्स के मुताबिक आटे की कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। हमें तो यही बात बताते हैं सेलमैन के आटे में गंदम का शॉर्टफॉल है और उसकी कमी की वजह से मार्केट में गंदम कम है, खरीदार ज्यादा हैं, तो यही वजह है कि गंदम महंगी है, इस वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। बहावलपुर में गंदम की कीमत बढ़ने के साथ ही इसकी किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। मार्केट ज़राए का कहना है कि हुकूमत बहरानी कैफियत से बचने के लिए गंदम की ताज़ा तरसील मुमकिन बनाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। महंगाई महंगाई महंगाई। रहीम यार खान में गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा। चक्की के आटे की कीमत भी बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो गई। गरीब के लिए रोटी है और ना ही आटा। आपको बताएं, गरीब के लिए रोटी है और ना ही आटा। रहीम यार खान में गंदम की कीमत में 500 रुपए फी मन इजाफा। चक्की के आटे की कीमत भी बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो चुकी है। पेट का ईंधन भरने के लिए रोटी चाहिए और रोटी के लिए आटा, मगर गरीब आदमी के लिए अब रोटी है ना ही आटा। गंदम की सरकारी कीमत 2250 रुपए फी मन है, लेकिन रहीमिया खान की ओपन मार्केट में 2 दिन के दौरान गंदम की कीमत 500 रुपए फी मन बढ़ गई, जिसकी वजह से चक्की आटा 95 रुपए से बढ़कर 110 रुपए फी किलो हो गया। दिहाड़ीदार तबका पेट भरने से भी कासिर। आटा 110 रुपए किलो मिल रहा है, तो काम लगता नहीं है। 10 दिन के बाद 500 रुपया मिला है और 500 को क्या करूंगा, आटा कैसे लूंगा? बच्चे बेरोजगारी से कभी किसी के घर जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। साढ़े कारोबार मंदा बहुत है, साढ़ा कारोबार खास नहीं हैगा। मजदूरी कम है, साड़ी मजदूरी देता कोई नहीं। हम 900 रुपये मांगते हैं, अगले 700 रुपये 600 रुपये जारी देते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं बनता। आटा 4000 रुपये करीब हो गया है, गरीब आदमी कहाँ जाए? जब आटा आता है सरकारी फोन नंबर लिया हुआ है, जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिलता ना। ये बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, सब आटा उठा के बाहर के ले जाते हैं। गरीब लाइन पे खड़ा होके शाम मगरिब तक बैठा रहता है। कभी बोलते हैं 3 बजे आता है, कभी बोलते हैं 4 बजे आता है। ये इंसाफ है? मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम और आटा की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। सरकारी निर्ख पर दस्तयाब आटा कहाँ आता है और कब फरोख्त होता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। कैमरामैन अनूर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। यूरिया खाद के बहरान से किसान परेशान। किसानों को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे रह गए। मुल्तान में यूरिया खाद महंगी होने के साथ गायब। फी थैला 2500 रुपए से 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। गंदम को पहले पानी देने का वक्त सर पर, लेकिन खाद किसान की पहुंच से दूर है। अली रियाज की रिपोर्ट में देखते हैं। किसानों की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। यूरिया खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है, क्योंकि गंदम की फसल को पहले पानी देने का वक्त आन पहुंचा।
लेकिन किसान यूरिया खाद की तलाश में हैं। इनका कहना था कि मार्केट से यूरिया खाद नहीं मिल रही और अगर मिल भी जाए तो 3000 तक मिलती है। ये थे लेकिन उसके मुताबिक हमें यूरिया खाद नहीं मिल रही। यूरिया खाद जो है ना अपने गवर्नमेंट रेट के हिसाब से भी कम से कम 500-700 रुपये महंगी मिल रही है, लेकिन मिलती है तो वो भी शॉर्टेज में मिलती है, कहीं रुल के मिलती है और सही तरीके से हमें मिल नहीं रही। पानी पहले लगाना है, गंदम को लेट होती जा रही है। अगर खाद वक्त पर ना मिली, पानी सही टाइम पे ना लगा तो हमारी फसल जो है ना वो सही तरीके से नहीं बनेगी। सर बहुत परेशान है, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें यूरिया दी जाए, क्योंकि हमें गंदम का पहला पानी लगाना है और यूरिया की वजह से सिर्फ हम पानी नहीं लगा रहे, हमारी गंदम जो है ना वो नुकसान का बायस बन रही है, दिन ब दिन लेट हो रही है। किसानों का कहना था कि यूरिया खाद की सरकारी कीमत 2250 रुपए मुकर्रर है, लेकिन डीलर मुंह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। गंदम को पहला पानी लगाना, जबकि यूरिया खाद हमें मिल नहीं रही। गवर्नमेंट रेट के भी 500-600 ज़्यादा मिल रही है, 3000-2800 का रेट है उनका। तो हुकूमत को अपील है कि खाद अपने रेट दे मिलन दी आर्डर करन ताकि साडी कणक को मुतासर न थी। परेशानी से 2-4 किसानों का कहना था कि अगर वक्त पर यूरिया खाद ना दी तो इस साल गंदम की पैदावार और बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान के शहरी सुई गैस की सहूलत से महरूम। शहर के ज़्यादातर इलाकों में अहम औकात के दौरान गैस गायब रहने लगी। सुबह सवेरे स्कूल और दफ्तर जाने वाले शदीद परेशानी से दो चार। शहरी कहते हैं बिल अदा करने के बावजूद लकड़ी और LPG पर गुजारा करना पड़ता है। तफसील जानने के लिए देखते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। सर्दियां शुरू होते ही गैस ने गायब रहना मामूल बना लिया। मुल्तान में मोहसिन टाउन के रिहायशी गैस की बंदिश से शदीद परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि हम बिल भर भर के थक चुके हैं, मगर गैस आती ही नहीं और जब आती है तो प्रेशर ना होने के बराबर होता है। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाते हैं। रात को आती है 6 बजे और रात को 9 बजे तक खत्म। अच्छा, प्रेशर नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा हैवी, जैसे खाना बनता है जल्दी आसानी में, या बच्चे स्कूल जाते आते हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है। इलाका मकीनों का कहना था कि एक तो महंगाई ने नाक में दम कर रखा है, दूसरा जब भी इंतजामिया को शिकायत करें तो कोई सुनवाई नहीं होती। महंगी लकड़ियां और LPG हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। यकीन करें जिसकी अब 800 रुपए दिहाड़ी हो वो 600 रुपए की लकड़ी ले 2 दिन जलाए, गैस बिल्कुल नहीं आती। वो मजदूर बंदा अपना पेट पाले की इधर। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑर्गेनिक खुराक को फरोग देने के लिए नुमाइश सजाई गई। सदर चैम्बर इकबाल हफीज ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। खुशमेवाजात, आलू बुखारा और मल्टी ग्रेन आटे को नुमाइश में पेश किया गया। मज़ीद देखिए आसिम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। दौलस्तानी और फर्टिलाइजर जमीनों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री को मुतारफ कराने के लिए रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज ने किया। ये जो आज नुमाइश हमने यहाँ रखी है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, इनकी पैकिंग, इनकी क्वालिटी, और जिन दोस्तों ने ये काविश की है मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि ये अपना मार्केट में जगह भी बनाएगी और बड़ी हेल्थी ये सारी चीज़ें हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे भाई नैयर साहब ने ये जो काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है और सारी नेचुरल चीज़ें हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। गुड़, हल्दी, शहद, खुश्क मेवाजात आइटम, आलू बुखारा और मल्टी ग्रैंड आटा को एग्जीबिशन में पेश किया गया। गुड़ के मुख्तलिफ ब्रांड हैं, शक्कर इसमें है और ऑल इन वन के नाम से ड्राई नट्स है, हनी है और मुख्तलिफ सॉसेज हैं जैसे आमला है, इसके साथ जिंजर का पिकल है, वेजिटेबल के पिकल्स हैं और मतलब काफ़ी सारे ब्रांड हैं। हमने जो है नॉर्मल यूज़ की मल्टी ग्रेन आटा है, देसी घी है। ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए रहीम यार खान की जोग्राफियाई हैसियत बहुत अहम है। ज़रख़ेज़ जमीनों के साथ साथ चोलिस्तानी इलाके को इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ऑर्गेनिक फूड को अच्छी पैकिंग में मुंतकिल करके आलमी मंडी तक रसाई भी हासिल की जा सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक 79P में तकरीब। फलाही रहनुमा के ताउन से अकलियती बरादरी के बच्चों में जर्सियां तकसीम की गईं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखते हैं। रहीम यार खान में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक 79P में तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन कसोरा जी शाद, फलाही रहनुमा आमिर फारूक, स्कूल हेडमास्टर अब्दुल राफे भट्टी, असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नन्हे तलबा और तालिबात में जर्सियां तकसीम की गईं। CEO एजुकेशन ने मेहनत, लगन और नज़्म ज़ब्त पर अमल करने का आगाही लेक्चर भी दिया। ये एक बहुत ही छोटा सा एक विलेज है और छोटा स्कूल है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने बड़ी मेहनत की हुई है बच्चों पर और बच्चे वर्दियों में मलबूस थे, लेकिन उनसे एक ही सिर्फ चीज़ जो जा रही थी वो ये थी कि उनके पास जो है ना सर्दियों के लिए जर्सियां नहीं थी। सो मतलब है कि यहाँ के समाजी एक शख्सियत हमारी हैं आमिर फारूक साहब, उनकी मेहरबानी से उनका शुक्रिया
कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो है ना वो बच्चों में तकसीम किए जर्सियाँ, और इस तरह बच्चे जो है ना वो सर्दियों से महफूज रहेंगे। स्कूल हेड अब्दुल राफे भट्टी ने कहा कि फलाही रहनुमा आमिर फारूक और उनके दोस्तों के ताउन से मुस्तहक तमाम बच्चों को जर्सियां दी गईं। यहाँ पे सर जो मिनॉरिटी के बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, इनका ताल्लुक बिल्कुल ही गरीब फैमिली से था, और ये बच्चे हर साल ऐसा था कि सर्दियों में बच्चे कपकपाते हुए आते थे और ऐसे ही जाते थे। तो इस दफ़ा जो है आमिर फारूक साहब जो हैं वो डोनर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रोई के तवसत से, और सीईओ एजुकेशन रहीम खान जी, कस्तूरा जी शाह साहब का, कि उन्होंने ये अहम स्टेप जो है वो लिया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस मौके पर नन्हे तलबा और तालिबात ने नई जर्सियां मिलने पर खुशी का इजहार किया। मेरे पास पहले जर्सी नहीं थी, मेरे दोस्तों के पास भी नहीं थी, हमें आज जर्सी मिली है, मुझे हमें खुशी बहुत। साथ पहन सकते हैं, जहाँ जाएंगे ये पहन सकते हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात हर बच्चे का बुनियादी हक है। अगर हर शहरी अपने इर्द गिर्द मुस्तहक बच्चों का ख्याल रखे तो माशरा और तरक्की की मनाजिल तय आसानी से कर सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रूही, रहीम खान। मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी की अल फजर यूनिवर्सिटी मारिंडस आमद मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वाइस चांसलर डॉक्टर सईद जुल्फकार अली ने ब्रीफिंग दी। अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। मारूफ रूहानी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी ने अल फजर यूनिवर्सिटी माड़ी इंडस का दौरा किया और अल खुमैनी ट्रस्ट के चेयरमैन अल्लामा इफ्तिखार नकवी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि यूरोप ने तालीम से तरक्की हासिल की, जबकि मुसलमानों का विरसा ही तालीम है। ऐसे लोग वतन अजीज की ज़रूरत होते हैं, मुसलमानों की ज़रूरत होते हैं। मुसलमानों की तरक्की का सबब यही है, राज यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ तालीम पर तवज्जो दें और दुनिया के बराबर सतह पे हम आए। आज जो यूरोप या दीगर अग़यार ममालिक तरक्की करते हैं वो इसी तालीम से जाते हैं, और ये तालीम तो मुसलमानों का विरसा है। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी का कहना था कि अब मियाँ वाली को तालीम के हवाले से पसमानदा नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मियाँ वाली के तालीमी इदारों को फंड दें। मियाँ वाली में आकर ये बड़ी खुशी हुई, हालांकि किसी इलाके में ये पसमादा इलाका था, अब इल्म के लिहाज से तो ये पसमादा हम इसे नहीं कहेंगे। वज़ीर आज़म, हमारी हुकूमतें और इदारों को फंड देती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हक और बेहतर तरीका होता है वो हमारे इन इदारों को भी सपोर्ट करें, फंड दें, फंड जारी करें। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी का मजीद कहना था कि अल्लामा इफ्तिखार नकवी की कुरान मजीद की तफसीर पढ़ने के बाद कराची में बड़ी तकरीब मुनक्कद कराएंगे। अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब ने तफसीर लिखी, बड़ी खुशी हुई, मेरे वहम गुमान भी नहीं था। तो इंशाअल्लाह तफसीर को जब हम पढ़ेंगे, देखेंगे मुकदमे को, तो सारी तफसीर मुझे समझ आएगी। उसके खिराज तहसीन जब हम करेंगे अलमीज़ान के, वो यहाँ नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह उसको कराची में हम बयान करेंगे। अल्लामा इफ्तिखार नकवी का कहना था कि मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी की आमद पर खुशी हुई। हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि वो हमारे इस इलाके में आएँ और हमारे तालीमी इदारों का विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन जो है हमें देखने को मिला और हमें बड़ी खुशी है। और इस वक्त ज़ाहिर है मुल्क तभी तरक्की करेगा अगर हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे। वाइस चांसलर अल फजर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद जुल्फकार अली का कहना था कि वो अल्लामा इफ्तिखार नकवी के ज़ेर साया तालीम के लिए हम आवाकोशा हैं। इन्हीं काविशों को, इनका वो ख्वाब जो वो पूरा कर रहे हैं, और हमें इन जैसे बुज़ुर्गों की वजह से, इनकी आमद की वजह से वो हिम्मत मिलती है, वो ताकत मिलती है कि हम इस सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाएं। इस मौके पर अल खुमैनी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चलने वाले दीगर तालीमी इदारों के प्रिंसिपल और असातिज़ा भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। बाबर आजम ने मद्दाह की ख्वाहिश पूरी कर दी। मुल्तानी लड़की सेल्फी बनाने पर खुशी से निढाल, रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लड़की का कहना था कि उसके मोबाइल में 3000 से ज्यादा बाबर आजम की तस्वीर हैं। जिस मोबाइल से अब सेल्फी बनाए वो कभी नहीं बेचूंगी। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। आंखों में आंसू लिए बाबर आजम के साथ सेल्फी, लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो अब रो क्यों रही है? फेवरेट पिक्चर है तो रोने की वजह क्या है? अच्छा, मोबाइल में पिक्चर तो है, सही है ये। आप किधर हैं इसमें? मुल्तान शहर की रिहायशी 14 साला महानूर फातिमा की बाबर आजम के साथ सेल्फी बनाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। महानूर का कहना था कि जिस मोबाइल से सेल्फी बनाई वो कभी नहीं बेचूंगी। 2 दिन तक स्टेडियम में बैठकर बाबर आजम को पुकारती रही, बिलाखिर मेरी पुकार सुन ली गई। जब बाबर आजम नीचे आया तो मैंने बोला बाबर आजम आई एम योर डाई हार्ट फैन। तो उसने कहा ओके, तो मैं उसके पास गई, फिर उसने मेरे साथ पिक्चर ली
तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बाबर आजम से मिलकर। महानूर के वालिद भी क्रिकेटर हैं। कहते हैं बेटी का क्रिकेट में शौक देखकर खुशी होती है। बहन का कहना था कि महानूर बाबर आजम की बहुत बड़ी फैन है। घर में भी बाबर आजम के खिलाफ कोई बात करे वो चीजें तोड़ने लग जाती हैं। कभी कभी महसूस होता है कि इस पर बाबर का भूत सवार हो गया है। उसकी मेरा मतलब है जैसे कह लें नौकरी कर रहा हूँ, इसे छोड़ के भी आता हूँ, लेके भी जाता हूँ, आता हूँ वापस, तो स्टेडियम भी जाती है, बल्कि मेरे साथ ही जाती रही है। तो कभी इरिटेट हो जाएंगे, यार बस करो, मतलब इतना भी क्या। तो ये क्या करती है, ये चीजें तोड़ती है घर की, मतलब ये दरवाजे मारेगी, हमारे दरवाजे देख लेंगे टूटे हुए आपको मिलेंगे। महानूर की डायरी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के साइन भी मौजूद हैं। महानूर का कहना था कि एक बार नसीम शाह से हाथ मिलाया, 2 दिन तक नहीं धोया। बाबर आजम के साथ हाथ मिल जाता तो फ्रेम कर लेती। तो मैं कटवा के फ्रेम करवा लेती। महानूर का कहना था कि शहरियों ने मैच के दौरान बाबर को तनकीद का निशाना बनाया, जो इन्हें बहुत बुरा लगा। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 14 साला महानूर फातिमा बाबर आजम के साथ तस्वीर खिंचाने के बाद उस तस्वीर को देखती रहती हैं और ये पुरुम्मीद हैं कि कराची में होने वाले टेस्ट सीरीज में बाबर के चौकों और छक्कों से पाकिस्तान को फतह जरूर मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।